Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. I promised you guys that इस वीडियो में मैं आपको एक health and diet related वीडियो देने वाली हूँ and I am so excited for today's topic because today I'm gonna try out इंटरनेट की viral protein packed items और products जो कि बार बार मेरी feed में आते रहते हैं and I just gave in. I bought them all and I am today going to try everything that I ordered under the sun जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होगा, कम कैलोरीज होगी and hopefully इसमें से हमें कुछ जेम्स मिल पाएंगे. It has like protein coffee, it has protein rice, protein roti, protein pasta, protein whatever you can think of, सब कुछ है हमारे पास. Even we have dosa also. So without any further ado, let's get started. The first protein item we're gonna try is milled high protein आटा. ये 46 ग्राम of protein पैक करता है in 100 ग्राम of आटा and per serving you'll get around 23 grams of protein. ये पहला आटा मैं देख रही हूँ जिसमें carbs कम है 22 grams and protein ज्यादा है 23 grams. Usually if a packet has 23 grams of protein you can add a zero in front of it and वो 230 calories से नीचे होना चाहिए. इसको नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना होता है. You don't need to do anything special. The same way जैसे आप घर पे करते हो. गूंदने में भी ये बहुत कोई चिपचिपा नहीं लग रहा था. It was just as normal as it can get. Roti is something that I've been missing from my diet because इसमें काफी carbs होते हैं and on a calorie deficit I really used to miss roti. So if this one works out I'll be really happy. And as you can see ये look wise भी बिल्कुल ही same लग रहा है. Genuinely so excited for this recipe. This is the first meal I'm having for the day and I am having this protein roti. Looks really good. बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई. It was just like normal आटा. I'm just really excited to have a protein packed meal in a roti. Like I said, the point of this video is to not try out things that are so out of my comfort zone कि वो मुझे अपनी डाइट का पार्ट ना लगे. But I want कि जैसे रोटी, चावल, सब्जी हम खाते हैं उसमें ही कैसे naturally हम प्रोटीन ऐड कर पाएं in a very cost effective way. So ये काफी सस्ता था and एक जो रोटी है उसके अंदर about 23 grams of protein है which is more than the protein shake I have in the morning. So let's go you guys. पहले मैं थोड़ी ऐसे ही कच्ची रोटी खा के देखती हूँ बिना सब्जी के. Just let's do a taste test. I am excited. I'm trying to find out what's different because honestly nothing is and that is very shocking because even the Dabexi आटा दैट वी यूज अपने घर के आटे में मिक्स करके वो हम मिक्स करके ही मिक्सचर इसलिए बनाते हैं क्योंकि एज इट इज वो यूज करने में काफी कड़वा लगता था एंड तभी हमने थोड़ा सा अपना नॉर्मल आटा मिलाना शुरू कर दिया बट आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम and just tastes like normal roti. Wow. All right, let's do a taste test with paneer bhurji now. सब्जी के साथ लगा के. Guys, I am pleasantly surprised. I mean, it's a very normal meal. मुझे कुछ भी टेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लग रहा है. कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई डाइट चीज खा रही हूँ या फिर कुछ हेल्दी चीज खा रही हूँ. जस्ट नॉर्मल लाइफ रेगुलर डे टू डे रोटी सब्जी लग रहा है. इफ आई रियली हैव टू निटपिक आई वुड से कि ये थोड़ी सी लाइक 19-20 ज्यादा चूई है कंपेयर टू द नॉर्मल आटा दैट वी हैव. थोड़ा सा मेरे को प्रेशर डालना पड़ रहा है अपनी जॉ में हल्का सा बट दैट इज बिकॉज मैं बहुत नोटिस करने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी डिफरेंट है. एंड द फैक्ट दैट इफ द क्लेम्स आर ट्रू, इफ द क्लेम्स आर टू बी बिलीव्ड, पीछे पैक के एक रोटी 50 ग्राम्स में अगर 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, ओ माई गॉड, मेरा आधा प्रोटीन इनटेक 2 रोटी खाने से पूरा हो जाएगा दिन का. आई एम गोना फिनिश दिस मील. मैं मॉम को भी ये ट्राई कराना चाहती हूँ एंड आई विल सी यू गाइज एट बेवरेज टाइम. मैंने आजकल अपना कॉफी का टाइम थोड़ा सा लेट कर दिया है एंड फॉर कॉफी आई डू हैव समथिंग वेरी 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 एक्साइटिंग इन माइंड. सो सी यू इन सम टाइम. ओके गाइज, सो दिस इज कॉफी टाइम एंड फॉर कॉफी आई हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. सो आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड ओवर Instagram ads and this is Provilac. ये उनकी हाई प्रोटीन कॉफी है. दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन इट. लाइक आपको नॉर्मल दूध भी मिल जाएगा A2 वाला. यू ऑल्सो गेट कोको, केसर, इलायची. So the options are endless and they're launching new flavors every day. So I really wanted to try out coffee जिसमें प्रोटीन है. और कितना प्रोटीन है? 160 calories and 26 gram protein. So 23 plus 26, 49 grams of protein. Oh my god. वो भी सुबह
11 बजे से पहले। आई एम शुक। नाउ दिस इज 250 ml एंड ये फैट फ्री है। इट इज पैस्चराइज्ड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क। ऑल्सो दिस इज ग्रेट फॉर पीपल जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, बट इफ यू आर तो ये लैक्टोज फ्री है एंड इट ऑल्सो हैज 0 प्रिजर्वेटिव्स। ये 2 days शेल्फ लाइफ है। आप इसको ऐप से ऑर्डर कर सकते हो एंड यू कैन शेड्यूल योर डिलीवरीज पर डे की। सो मैंने आज की थी बिकॉज आई वाज फिल्मिंग दिस वीडियो टुडे। सो लेट्स ओपन इट एंड ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड लाइक 3 more फॉर माई पेरेंट्स एंड रवि। सो मैं उनका भी टेस्ट टेस्ट लेने वाली हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स just try out this Provilac coffee. Oh, wow. Wow. Yummy. मैं इसका एक शॉट ले सकती हूँ लाइक पूरा। इसके अंदर मैं अपनी शुगर ड्रॉप्स डाल सकती हूँ, बट मुझे वो नीड नहीं फील हो रही है बिकॉज बहुत ही सटल कॉफी फ्लेवर है ये, विच आई रियली लाइक। आई एम अ वेरी सॉफ्ट कॉफी गर्ली, सो genuinely very light in flavor. I really like the fact that इसमें थोड़ा सा कोको टाइप फ्लेवर भी आ रहा है, लाइक कॉफी एंड कोको मिक्स। आई डोंट नो इसमें चॉकलेट है या नहीं है, बट हल्का सा मुझे चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा है एंड आई एम ऑन माय पीरियड राइट नाउ, सो इट्स वेरी सूदिंग ऑल्सो। I didn't imagine there will be a day जब 26 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन लेना इतना इजी हो जाएगा। लाइक इवन इफ वी टॉक अबाउट 6 or 7 months बैक, जब जून में मैंने स्टार्ट किया था, तब भी आई वॉज एक्टिवली सर्चिंग फॉर प्रोटीन ऑप्शंस एंड बहुत कम मिलते थे इवन ब्लिंकिट वगैरह में। एंड नाउ वी हैव दीज एप्स, वी हैव न्यूअर ब्रांड्स कमिंग इन एंड द ओनली थिंग आई प्रे टू गॉड इज दैट जो भी पीछे लिखा हो, जो भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जो भी कैलोरीज बताई हैं, जो भी प्रोटीन बताया है, वो जस्ट ट्रू हो। आई रियली नीड फूड फार्मर और सम अदर पर्सन टू टेस्ट आउट दीज ब्रांड्स के जितना प्रोटीन ये बोल रहे हैं उतना एक्चुअल में हो, एंड अगर एक्चुअल में है सो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। सो लास्ट में सिप ले रही हूँ इसकी। मैं बात करते करते यहाँ से पूरा पी गई बिकॉज जेन्युइनली वेरी गुड टेस्ट। वाओ, 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद कॉफी, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। हम आए हैं रवि और पापा को प्रोटीन कॉफी देने। अभी रवि का ओहो, ये तो एक सांस में पी। ऐसा लगा? नो Coffee. टेस्टी, नो टेस्टी? Tasty. पी लो। चलो, इसको पसंद आ गया। ओए, पर कॉफी फ्लेवर अच्छा है। कॉफी फ्लेवर तो बहुत कम है इसमें। माइल्ड है ना? बहुत माइल्ड। हाँ, बिटर वाला टेस्ट नहीं है। मुझे तो दूध जैसे पापा को कॉफी वैसी नहीं पसंद। रवि और मैं मिल्क कॉफी पीपल है। दूध जैसी कॉफी है तो। पर इसमें प्रोटीन कितना है? कितना प्रोटीन है इसमें? 26 ग्राम, बहुत ज्यादा है। मैं तो पी लूंगी। मम्मी वैसे वेजिटेरियन है तो अच्छी है। अच्छी है ना? नॉर्मल प्रोटीन है। नहीं अच्छी है। नॉर्मल प्रोटीन है। पंगे ले रहे पापा मम्मी से। नॉर्मल प्रोटीन है। देखा नहीं तूने रेड साइन है उस पे? नहीं ग्रीन साइन है। इसको क्या हो गया? इसको मजा आ गया। मजा आ गया? पापा को नहीं पसंद आए। रवि लाइक्स इट, आई लाइक इट, एंड मम्मी नहीं, इनको तो हमेशा एक्स्ट्रा मीठी चीजें पसंद है। मैं गाजर का नहीं, हलवा पर भी पापा तो बनाती कह रहे थे माइल्ड है, उनको और स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। हूँ। अच्छा, मतलब दूध जैसा फ्लेवर है। हाँ, ये दूध वाली कॉफी का है ना। अच्छी है। दूसरी वाली ठीक थी। और 160 कैलोरी है तो बस ठीक है, इतना तो होता ही है वैसे। प्रोटीन शेक में भी होता है। होता है। मुझे तो अच्छी लगी, मैं पी सकती हूँ। Next on our list is Protein Pantry की तंदूरी चाप. I am a chap lover, but I have avoided it so much because इसमें मैदा होता है all in all. And this brand specifically has been popping up in my Instagram feeds. इनके बहुत अलग-अलग cutlets and kebabs भी होते हैं, but you guys know your girl. I wanted to try the tandoori soya chap. Now इसमें 100 ग्राम में 169 calories हैं and you get 19 ग्राम of protein, which is not bad at all because ये 190 calories से कम है। इसके अंदर कोई एडेड शुगर भी नहीं है। It also has 3.4 grams of fiber, which is good. एंड इसके अंदर कार्ब्स भी काफी कम है, विच इज अराउंड 9.6 ग्राम्स। ऑल्सो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स या पाम ऑयल नहीं है, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। द टोटल पैक इज 338 कैलोरीज एंड 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज रियली गुड ऑन अ वेट लॉस और कैलोरी डेफिसिट जर्नी। एंड द बेस्ट वे आई लाइक टू हैव इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रैप विद प्याज एंड मिंट चटनी। इसको बनाने में आई ऑल्सो यूज द प्रोटीन आटा दैट आई शोड यू गाइस फर्स्टली, एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है दिस इज गोना बी अमेजिंग।
Alright, I'm here with my soya chop roll and मैंने इसको प्रोटीन आटे में ही बनवाया है जो हमने इससे पहले ट्राई किया था and this is the one that intrigued me the most because I am a soya chop lover through and through. You guys know that for years now. But ये प्रोटीन पैंट्री के जो है वेरिएंट्स उसमें आपको एक कॉर्न एंड चीज़ या मशरूम वाली टिक्की भी मिलती है एंड यू ऑल्सो गेट बीट रूट कबाब. सो आप वेज ऑप्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो. यू जस्ट डोंट हैव टू ईट चिकन या मीट इन ऑर्डर टू गेन प्रोटीन एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रोटीन पैंट्री के वेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये आई एम नॉट गोना लाई, आई एम नॉट ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये मैं बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी डाइट में यूजुअली डिनर के टाइम पे खाती हूँ अराउंड 7 और 6:30 क्योंकि मुझे सोया चाप बहुत पसंद है एंड आई डू क्रेव अ सोया चाप रोल. सो इसका टेस्ट आई नो दैट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सॉल्टी है, मैं पहले बता देती हूँ. लेकिन द फैक्ट दैट दिस हैज़ अराउंड 338 कैलोरीज एंड 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक द फुल पैक एंड अगर पर सर्विंग आप देख रहे हो तो आपको 169 कैलोरीज में 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा. प्लस क्योंकि ये रोटी है तो उसमें आई थिंक 23-22 ग्राम प्रोटीन मुझे और मिल रहा है. सो इट्स अ वेरी हेवीली प्रोटीन पैक्ड मील. आई वुड सजेस्ट इससे पहले एक प्लेट सैलड खा ली जाए या इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा सब्जियां वगैरह डाल ली जाए. आई चोज प्याज एंड ग्रीन चटनी बिकॉज दैट इज एन एवर लास्टिंग कॉम्बो. सो लेट्स डिग इन यू गाइज. It does taste absolutely amazing. Also क्योंकि ये सोया चाप तंदूरी सोया चाप वाले फ्लेवर में है तो हमें कुछ भी मैरिनेशन सीजनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं थी. ये फ्लेवर्स के साथ ही आती है. द ओनली थिंग इज दैट क्योंकि इसमें सॉल्ट हल्का सा ज़्यादा है ना, जब मैं हरी चटनी बनाती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट या योगर्ट मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस्ड फ्लेवर हो जाए इंस्टेड ऑफ ऑल थिंग्स सॉल्टी. बट love it so freaking much. This is something जो अगर आप एक सोया चाप या न्यूट्री लवर हो you will love and relish and just cherish this so much because this is just what चाप ड्रीम्स आर मेड ऑफ. एंड मुझे अगर ये बर्थडे के टाइम अपने पता होता मैं यही खाती. एंड नेक्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई द ग्रेवी जो ट्रेडिशनल मुझे सोया चाप पसंद है ना, ग्रेवी बना के उसमें ये चाप डाल देंगे एंड दैट विल बी जस्ट ओ माई गॉड. मैं अभी से सैलिवेट कर रही हूँ. बट या वेरी वेरी गुड प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट. आई डोंट थिंक इसके टेस्ट में मैं बहुत कोई कमी निकाल सकती हूँ. चटनी के साथ तो इट्स हिटिंग ऑल द इंडी देसी स्पाइसी लेवल दैट आई वॉन्ट एंड उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. After that wonderful success, we have Pink Harvest Farm का पास्ता and ये पास्ता बना है मसूर दाल से. Now this is plant-based protein enriched with a lot of fiber and इसमें आपको 23 ग्राम of protein मिलेगा per 100 ग्राम पे. This doesn't have any wheat or rice or मैदा, which I'm excited about because पास्ता में काफी carbs और calories होते हैं. The only thing that concerns me are the calories because इसमें अगर हमें 23 ग्राम of protein मिल रहा है 100 ग्राम में तो 333 calories मिल रही है, which is a bit much. Also the carbohydrates in this one is a lot, so I wouldn't say कि ये बहुत ही healthy option है, but it is gluten free and क्योंकि ये दाल का बना है so I'm really excited to try this one out. इसको भी मैंने normal पास्ता की तरह उबाल के पूरा prep करके डाल दिया है and I've made it into an Indianized pasta या macaroni जैसे हम घरों में बनाते हैं. But let's see how this one turns out. Guys, 167 calories and 12 gram of protein is not that great, but I'll take it if there's a pasta involved in the picture. I have tried to make it more healthy by adding paneer in it. उसमें थोड़ा सा protein healthy fats होते हैं. I have also added गाजर and शिमला मिर्च which is not typically pasta style but ये homemade हमारे घरों में जैसा Indianized pasta बनता है वो ऐसे ही बनता है. And इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है because मैंने शुरू में जो preparation थी ना वो आली ओलियो जैसी की थी like olive oil and garlic and chili flakes. तो वो वाला जो Italian flavor जो at its core है वो आ रहा है and उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमने इसको बहुत हिंदुस्तानी तरीके से बना दिया है. And since it's made mostly from dal and it doesn't have any मैदा so मैं इसको थोड़ा सा गिल्ट फ्री वे में खा सकती हूँ. लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट. आई एम टेकिंग अ फुल बाइट जिसके अंदर सारे वेजीज आए एंड पनीर आए. ओके, टेस्ट टेस्ट. I would say the texture of it is quite chipku. Like I'm getting a very dal flavor. Like अगर आप हल्दीराम की दाल खाते हो या पल्स, मुझे बहुत ही एक टिपिकल दाल फ्लेवर आ रहा है एंड दैट्स व्हाट्स मेसिंग विद माई हेड बिकॉज आई मे बी इट्स सबकॉन्शियस कि आई नो कि इट्स नॉट मैदा एंड ये दाल का बना हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए मेरा ब्रेन इस वे में रिएक्ट कर रहा है बिकॉज इसका एक टिपिकल फ्लेवर है जो आप मोस्टली अगर प्रोटीन वाली चीज़ें खाओगे, जैसे जो मैं पहले प्रोटीन आटा खाती थी उसमें बहुत अजीब सा हल्का सा कड़वा फ्लेवर आता था, वैसे ही फ्लेवर इसमें हल्का सा बिटर आ रहा है.
and the texture is also not soft like वो जो पास्ता की जो वाइब होती है वो नहीं है इसमें. So I would say out of all the things I've tried so far, this is the only thing that I might not try again because I will keep searching for more good pastas जिसमें ऐसा लगे ना कि मैं प्रोटीन खा रही हूँ या हेल्दी फूड खा रही हूँ. All in all, I wouldn't say कि कैलोरीज एंड प्रोटीन का जो रेशियो है उसमें भी बहुत अच्छा है. एसेंशियली इफ इट हैड 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन सो देन इसको 160 कैलोरीज से नीचे ही होना चाहिए था, बट इट इज़ 190 कैलोरीज और समथिंग. सो इतना हेल्थ के मामले में भी ये बहुत बेनिफिशियल नहीं है. बट इन केस यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा पास्ता क्रेव करता है, सो आप इसको उस वे में प्रिपेयर करके बना सकते हो. बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट द टेस्ट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम. आई स्टिल विल फिनिश इट बिकॉज आई हेट वेस्टिंग फूड, बट there's something about the texture and a subtle bitter aftertaste. जब आपने उसको निगल लिया होता है एक फीलिंग आती है which is not the best. So yeah, I don't like it. Sorry guys. But नेक्स्ट चीज मुझे पसंद हो ना हो, मेरे पूरे परिवार को पसंद है एंड आई एम रियली रियली श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पसंद होगी. इट्स समथिंग साउथ इंडियन एंड आई हैव ऑल्सो ग्रोन फॉन्ड ऑफ इट as time has passed by. So let me show you guys what's the next thing all about. The next one on our list is from Dibexi. This is their Dibexi instant dosa mix. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है you guys. ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, इससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा if you are diabetic, and इसके अंदर 485 कैलोरीज में आपको 37 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है which is okay. बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कैलोरी डेफिसिट में, बट इफ यू गेट डोसा क्रेविंग्स एंड इफ इट टर्न्स आउट वेल तो ये बहुत ही अच्छा रह सकता है ना. इसके इंग्रेडिएंट्स काफी प्रॉमिसिंग थे. इसमें फ्लैक्स सीड्स थे, आमंड ऑयल था, सोया का वेज प्रोटीन सोर्स था एंड ट्रूथ बी टोल्ड डायबेक्सी का जो शुगर आटा है वो हमारे घर में मिक्स करके हम यूज करते हैं एंड उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद इट. इसको भी नॉर्मल आपको एक बोल में लेके पानी डालना है एंड जैसी कंसिस्टेंसी आपको डोसे के लिए चाहिए पतली पतली सी वैसे आपको बनाना है उसको एंड यू जस्ट हैव टू मेक इट लाइक अ रेगुलर डोसा. ना मेरे घर में सांबर नहीं बना था सो आई क्विकली मेड कोकोनट चटनी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेट्स फाइंड आउट हाउ इट टेस्ट्स. आई हैव समथिंग which is not even my choice, but I am doing this for my family and for you guys who love dosa so much. So we have a dosa right here with some coconut chutney. मेरे घर में डोसे बहुत बनते हैं, especially paper dosa and all of that. So I'm really excited to try it. मैंने Dibexi का आटा प्रोटीन आटा ट्राई किया हुआ है. That is a little bitter in taste, and after that pasta thing I am really scared, but let me just give it a try. काफ़ी बाहर से क्रिस्प सा लग रहा है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट है. इसको मैं थोड़ा सा चटनी में लगाती हूँ. चटनी इज रियली टेस्टी. अच्छा लग रहा है ये. लेट मी जस्ट ट्राई इट विदाउट द चटनी. आई फील लाइक ये चटनी ने काफी ओवर पावर कर लिया. लेट मी हैव अ फुल बाइट. Oh no. This has that typical Dibexi आटा फ्लेवर. Oh no, मुझे इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है डोसे का. वाओ, हाउ मच डिफरेंस कैन चटनी मेक यो. मैंने एक चटनी के साथ लगा के खाया तो आई एम लाइकिंग इट and ये as it is not. I think I find this worse than the pasta. Pasta was still edible, but in itself this is not it. But maybe because I'm not too excited about South Indian food, तो maybe मेरे को ऐसा feel हो रहा है after eating it. Let's ask the experts. Let's bring in the experts. Let me ask them to try this out. We have dosa experts जो ट्राई करेंगे Dibexi का डोसा विद कोकोनट चटनी. आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज माई रिव्यूज. मैं इनका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहती हूँ. क्या हो गया? नहीं अच्छा. नहीं अच्छा. चटनी टेस्टी है, डोसा नहीं अच्छा. एग्जैक्टली मैंने यही बोला था. क्या हुआ? खा के देखो. क्यों? Dibexi का वो है. कुछ रोटी जैसा है ना Dibexi. नहीं पर मम्मी Dibexi का जो आटा हम खाते थे बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा है इसमें, बट डोसा का बिल्कुल फ्लेवर नहीं है. हाँ, इसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं इतना लग रहा जितना देखने में लग रहा था. प्लस द ओनली सेविंग ग्रेस इज चटनी टेस्टी है. जब मैंने चटनी के साथ खाया मुझे ठीक लगा. मैंने जब ऐसे ही एज इट इज खाया बिना चटनी के बहुत ही मे बी इसको थोड़ा और पकाना हो. नहीं इतना तो करारा हो गया था ये. हमने एक और ट्राई किया था वो पूरा ब्राउन फिर जल ही गया था. कैसा लगा? ठीक है.
इनको ठीक लगा, मैं तो आई डोंट थिंक पापा खाएंगे दोबारा, मैं वो तो ठीक कभी है ऐसे नहीं खा बोल सकती। रहे हैं। मैं तो कभी नहीं खा सकती। गेट्स अ थम्स डाउन फ्रॉम डोसा अस। जैसा क्रिस्पनेस नहीं है बिल्कुल। बूहू। पर ये इतना क्रिस्पी बनाया था, ये इतना सॉगी कैसे हो गया? हो गया, मुझे ये नहीं टेक्सचर ही समझ ऐसा है, आया। प्रोटीन ज्यादा है ना इसमें, चना सोया वगैरह, इसलिए not good. Now I am very excited for this one because this is a very beautiful rice alternative and ये बना है edamame का. For those of you who don't know, edamame soya plant का ही derivative होता है. Now this has 354 calories for 100 gram, but इसमें protein हमें 43 gram मिल रहा है, which is absolutely amazing. Now this does look like brown rice. इसी पैक के अंदर आपको स्कूप दिया होता है, तो अगर आप एक स्कूप ऑफ राइस डालोगे उसके अगेंस्ट आपको 2 ग्लास पानी डालना पड़ेगा. I love मेरे घर का जो सब्जी वाला पुलाव होता है with lots of मटर in it and that is how we made it, ताकि घर वाली फीलिंग लगे. And honestly this is something जो मैं अपनी मॉम के लिए करना चाहती थी. She really likes rice and I think अगर ये एक अच्छा alternative हो जाएगा, so I'll be able to include more veg protein sources. This looks very colorful and incredible, but let me see how it tastes now. I am a little scared for the last thing we have to try because it's rice and this is from the brand called Pink Harvest, जिससे मैंने पास्ता भी खाया था and that was not great. So I am a little skeptical because ये edamame राइस मैंने specifically अपनी मॉम के लिए मंगाया था because she does not eat egg or chicken and everything and edamame is a great source of protein. ये सोया वाले प्लांट का ही एक डेरिवेटिव होता है and इसके अंदर 7 times more protein है, 4 times more fiber है versus rice. ना ये 200 ग्राम का पैकेट है. I think per serving आपको कुछ 40 ग्राम की पड़ेगी. मैंने 40 ग्राम से कुछ ज़्यादा ही लिया हुआ है यहाँ पे बना के, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 40 ग्राम्स लोगे तो इसमें आपको 141 कैलोरीज में 17 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, which is fab because ये 170 कैलोरीज से नीचे है, 141 कैलोरीज. एंड आई थिंक अगर ये टेस्टी निकला सो माय मॉम विल हैव अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू राइस. अभी हमने घर में मटर एंड जो वेजिटेबल पुलाव होता है ना नॉर्मल सा, वही बनाया है बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे मटर पुलाव एंड जीरा राइस ये वाली चीज़ें पसंद है. आई एम नॉट पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ राइस बट पुलाव आई लव. सो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. मुझे ऐसा लग रहा है ये जो राइस है ना फेक राइस है. लाइक लुक एट दैट अप क्लोज एंड पर्सनल. ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रीला को ऐसे ग्रेट करके राइस बना दी गई है. बट हे, इफ इट गिव्स अस प्रोटीन एंड इफ द टेस्ट इज नॉट च्यूई, बिकॉज मेरी मम्मी को न्यूट्रीला भी नहीं पसंद, सो दैट ऑल्सो कट्स ऑफ हर प्रोटीन थिंग. सो let's give it a go you guys. Let's try. Let me be Gordon Ramsay. I mean, wow. I'm really happy about the fact that it doesn't have that kadwa taste of protein. It was not chipku when I was chewing it. And it surprisingly also doesn't taste like edamame or Nutrilla. It has a taste of its own. But the fact is कि राइस की तरह भी टेस्ट नहीं कर रहा है. So I don't know what it tastes like. But because मेरे घर में पुलाव इतना टेस्टी बनता है तो वो सारे ingredients and वो सारा जो flavor है इसके अंदर, it's right there. And would I like to have it again? Absolutely. Amazing. Next time I think I'm gonna try making biryani with this rice. Wow. I really like it. Let me ask mummy to come try. Okay, this is what I'm gonna make my mom try. शक्ल तो अच्छी लग रही है. हाँ शक्ल अच्छी है. फ्लेवर मुझे पर्सनली पसंद है, बाकी आई डोंट नो अबाउट यू. अच्छा लगा क्योंकि एडमामे का है एंड वो भी सोया या न्यूट्रीला की तरह ही होता है, तो मुझे ये लगा था कि आपको ये ना लगे न्यूट्रीला का. नहीं, ये लग रहा है फ्राइड राइस की तरह, है ना. बहुत अच्छा लग रहा है. वो पुलाव बनाया भी दिवाकर ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, वेरी फ्लेवरफुल. एंड अब आप राइस खा सकते हो. वेज सोर्स मम्मी के लिए प्रोटीन का. बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये तो खा सकते हैं, है ना. चलो ठीक है, मैं इसमें न्यूट्रीला पुलाव बनवाऊंगी. पापा के लिए हम इसमें बिरयानी बनवा लेंगे और मम्मी इसको मटर पुलाव ऐसे वेज की तरह खा लेगी या फ्राइड राइस. और फ्राइड राइस जब प्रॉपर अगर बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा लगेगा. Wow, I am really happy about this one right here because rice and roti जो दो चीजें थी मेन, उनका टेस्ट अच्छा आ रहा है and that consumes I think 80-90% of Indian diets and उसका हमें प्रोटीन ऑल्टरनेटिव इस वीडियो में मिल गया. I am really happy. ये अभी तक की मेरे को लगा बेस्ट. रोटी बेस्ट नहीं, रोटी भी बहुत अच्छी थी. हाँ, रोटी और ये दोनों बेस्ट. वही तो मैं बोल रही हूँ, वो दोनों बेस्ट थी. एंड आफ्टर दैट ठीक है वो कॉफी वगैरह भी ठीक थी, बट दीज टू
Top, ये बेस्ट है। top. हाँ, इसमें ना वो सोया का कुछ फीलिंग नहीं आ रही, चुई वगैरह फीलिंग आ नहीं रही, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। You heard it right here. बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, जितने भी लोग हैं, आई थिंक एक या दो को छोड़कर किसी को चाप, किसी को न्यूट्रेला, किसी को पसंद ही नहीं है प्रोटीन सोर्स किसी को. Alright guys, so that is it for today's video. That is it for me trying out all the internet's viral, sensational, protein packed dishes or products. In my fitness video, I told you guys I really want to keep pushing this conversation forward about health and fitness. It is just not some video जिसमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के खत्म, टाटा बाय बाय कर दूँ. I really want to make videos जिसमें मेरे को भी हेल्प होती रहे एंड आप लोग भी इसमें से कोई एक चीज़ उठा पाओ एंड अपनी लाइफ थोड़ी और बेटर कर पाओ, बिकॉज हेल्थ इज समथिंग जो हम बहुत ज़्यादा ओवरलुक करते हैं. लाइक बचपन में हमें पता नहीं होता एंड जब तक जवानी आती है तब तक हमें एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा करनी होती है, चीज़ें ट्राई करनी होती है, विच इज़ टोटली फेयर. बट जब होश आए उस टाइम होश संभाल लेने चाहिए. एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू क्रिएट मोर सच वीडियोज फॉर यू गाइज. आई डू हैव अ लॉट ऑन माई लिस्ट के और कौन सी प्रोटीन वाली बहुत आजकल चीज़ें निकल रही है. आई थिंक प्रोटीन इज द न्यू ट्रेंड, बट ट्रेंड में से भी जो चीज़ हेल्पफुल है वो निकालनी चाहिए. देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वर्क करेंगी आपके लिए, बट सम थिंग्स लाइक द राइस और द रोटी, जो आटा था हमारा, वो वर्क करेंगी. एंड आई थिंक अगर हमारी पॉकेट को फिट करता है, देयर इज नो हार्म इन स्विचिंग इट, बिकॉज हमारी ही लाइफ उससे बेटर होगी, हमें फायदा होगा. सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज गिव इट अ लाइक अगर आपको इस वीडियो में हमारे एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स पसंद आए हो तो, एंड डू सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो. मैं ऐसी वीडियोज और बहुत सारी फन अमेजिंग वीडियोज बनाती रहती हूँ इस चैनल पे. एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी मोर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Bye.